Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. So the next thing is Unacademy's awesome special classes. Yes, we are having the live real-time interactions using chats and emojis. Yes, Unacademy के जो हमारे स्पेशल क्लासेस है वहाँ पर आप लोग लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं by using chats and emojis. Yes, obviously you are going to have poll leaderboards and you can compete with your friends also. वहाँ पर कुछ polls हो गए leaderboards. So उसमें क्या होगा, आपकी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी and yes you will have the fun with learning. And the next feature of these special classes is you can ask questions using the question tab. You can see the screenshots here. The question, you can type your questions related to the subject and directly send to the teacher also. So ये हमारे Unacademy के some of the special classes के features है. That is, you are going to have live real time interaction using the chat and emojis. Then you can have the live quiz through pros. So pro leaderboards में आप लोग क्या कर सकते हैं? You can have the competition with your friends also, and you can ask the questions using the question tab also. Then next, how to watch these special classes also. देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, पहले यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. जो स्टूडेंट्स है वो लर्नर ऐप जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन गो टू दी गूगल प्ले स्टोर, और आपका अगर एप्पल का है तो यू कैन हैव दी एप्पल स्टोर ऑल्सो. सो वहाँ पर आप लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप के लिए सर्च कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. देन इंस्टॉल इट, डाउनलोड कर. वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ओपन दी ऐप एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड. ठीक है, आपका ऐप ओपन हो जाएगा. Then next step is you have to enter your mobile number and OTP. आपका जो करंट मोबाइल नंबर है आपको यूज करना है. then you will get one OTP and based on that OTP you are going to sign up using the email ID. So next step is you have to enter your full name, then your mobile number will be already registered. Then enter your email address and state of the register. So this is the step to watch the special classes. That's the last step is sign up using the email ID. First one, download the Unacademy Learner app, then open the app and click on get started. Then enter your number, that is mobile number and OTP, and lastly sign up using the email ID. Then next step is that is select the classes from class 6 to class 12. It is what goal you are preparing for. You can select for the competitive exams, as well as if you are going for the class CBC classes 6 to class 12, you can go for that also. ठीक है, CBC क्लास 6 to 12 आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद आपके डिफरेंट क्लासेस आएंगे, क्लास 6 to class 12 एंड आल्सो द क्रिएटिव कॉर्नर. देन आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन क्लास. देन नेक्स्ट, विच लैंग्वेज यू वुड प्रिफर टू लर्न, कौन सी लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाई करें. सो यहाँ पर सेलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज. सो यू कैन यूज इंग्लिश, हिंदी, और हिंदी एंड इंग्लिश, both mixed. Then next what you are going to do, go to the description of this video, the video which I am playing now, and click on the special class link. यहाँ पर special class की जो link है वहाँ पर आप लोग चाहिए. Then click on notify me and you will get denotified 10 minutes before the class begins. And you can use the code to unlock the special classes for free. Technology code 402 under NSQF. So in today's lecture, we are going to study about the database management system, that is introduction to databases part 2. Okay, last lecture ने हम लोगों ने देखा था what is database, how database is going to work, what are the advantages of the databases, right?
So in today's lectures, we are going to see how the tables, queries, forms and reports are going to be used in the database. Uske baad, after this lecture, we are going to see the actual practical sessions related to the database. But don't miss the basic lecture, that is introduction to database part 1 and part 2. Then only you are going to understand how practically we are going to perform the operations on databases. So let us start with the tables. So the first one is the tables. What is mean by the tables in database? Tables क्या होते हैं? ठीक है, आप लोगों ने एक्सेल्स में टेबल देखे होंगे, हाउ टू यूज द टेबल्स इन एक्सेल्स वो भी हम लोगों ने देख चुके हैं. Now what is the tables? Tables are nothing but it is a storage container storing data pertaining to a single object, subject on a purpose. एक कोई पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा स्टोर करते हैं इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट. जिसकी हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट्स देखी थी, वहां पर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टेबल बनाया था, उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स थे. इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज स्टूडेंट्स रोल नंबर वाज देयर, then the subjects were there like Hindi, English and science. Likewise, then we have calculated the average of the particular students all the marks, or average of the whole students marks, and so on. We have performed many more operations on the tables in the Microsoft Excel itself. So what are the, first of all, let me tell you about the components of a table. Table के components क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग फर्स्ट पहले डिस्कस करेंगे. देखिए, a table is going to store the information for a group of things known as fields, and group of things means what, fields are going to make together records. ठीक है, अभी देखिए टेबल जो होता है वो क्या होता है, it is going to store information for a group of things known as fields which together make up records, right? So and data item is the smallest unit of the named data. ठीक है, अभी हम ये सारी जो टर्म है एक्चुअली स्टडी करेंगे ताकि आपको और अच्छे में इससे समझ में. अभी देखिए, रिकॉर्ड इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स विच रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन. डेटा आइटम्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं. Then next one is we can see that lastly we can conclude that a table is a collection of all occurrences of a given type of logical records, and it is also called as a relation in a relational databases. As we have seen, there are flat and relational databases in last lecture, if you have seen the lecture. So now the next ones are the fields or attributes are the columns containing one type of information, and records are the rows representing one complete unit of information, and a logical record contains the contents of the all the fields. So we can lastly conclude that a table is a group of all the logically related records here. So before going to for the types of key in a table, firstly we will try to see what are the tables here. Okay, so I will just open Microsoft Excel. ठीक है, so I will select blank workbook. अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट रोल नंबर विल बी देयर, देन आई विल टेक स्टूडेंट्स नेम, देन ईमेल आईडी. ओके, दीज आर माय टेबल फिट्स. ठीक है, अभी मैं यहाँ तक उसको हाईलाइट करके लेती हूँ. आई विल सिलेक्ट ऑल बॉर्डर्स. फॉन्ट थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं, फॉर्मेटिंग तो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं एक्सेल में, so that's not new thing for us. Student name, roll number and email ID. Okay, ठीक है, ये सब अभी हम लोगों ने डेटा सेट ले लिया है. अभी देखिए ये मेरा जो है, दिस होल इज व्हाट, अ टेबल. टेबल कंटेन्स रोल नंबर, नेम एंड ईमेल आईडी. ये सारे जो है क्या है, एक्चुअल पर्टिकुलर फील्ड्स है अपने टेबल की. अभी यहाँ पर देखिए हम लोग अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सपोज आई एम गोइंग टू राइट द रोल नंबर एज 1 2 3 4. ठीक है, अभी यहाँ तक ले लेते हैं हम लोग. सीमा कुछ तो अभी seema@gmail.com. सपोज हर ईमेल आईडी इज लाइक दैट. थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं. देन ram@gmail.com. then I will take as john@gmail.com. ठीक है, ये मैंने इमेजिनरी नेम्स एंड ईमेल आईडीज ले लिए.
अभी देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नेम और ईमेल आईडी जो है ये क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए आपके टेबल्स के जो है वो, ये पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स हो गए। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखी हुई थी, डेटा आइटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नेम डेटा। सो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, अभी देखिए सीमा जो है ये एक डेटा आइटम है, राम जो है ये एक डेटा आइटम है, जॉन जो है ये एक सेपरेट डेटा आइटम। ये सारे एक एक करके मैं आपको डेटा आइटम्स जो है वो रीड करके दिखा रही हूँ, दैट इज नथिंग बट द डेटा आइटम्स। गीता जो है ये एक सेपरेट डेटा आइटम है, एंड वी आर हैविंग द कलेक्शन ऑफ दीज डेटा आइटम्स इनटू अ यूनिट। So it is called as what? A complete unit of information. A record is named collection of data items which represent a complete unit of information. So देखिए अभी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या, नेम जो है, अभी नेम कॉलम को मैंने पूरा सेलेक्ट किया, अभी रो एंड कॉलम्स यू हैव सीन इन द एक्सेल, बट आई कॉन्ट से इट अ कंप्लीट यूनिट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ जितने नेम्स है, वट एवर द नेम्स आर देयर वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस। बट अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर रोल नंबर 1 है, उसका नाम सीमा है, एंड उसका ईमेल आईडी seema@gmail.com है। सो दिस पर्टिकुलर रो इज कॉल्ड एज द रिकॉर्ड और अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कंप्लीट रो से हमको क्या पता चलता है, देखिए स्टूडेंट्स, रोल नंबर 1 का नाम, रोल नंबर 1 स्टूडेंट का नाम जो है वो सीमा है, और उसका ईमेल आईडी जो है वो seema@gmail.com है। So as per the definition, a record is a named collection of data items which represents a complete unit of information. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। और ये जो पूरा रिलेशन जो है हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर टेबल। अभी देखिए ये नेम सेपरेटली, email id separately, and roll number, these are all nothing but what we can call it as the fields or attributes of our databases। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो कॉलम्स है सिंपली हम लोग कह सकते हैं कॉलम्स आर नथिंग बट व्हाट, fields or attributes, and rows are nothing but what, records, if you are trying to derive between the rows and columns। सिंपली कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, एक फील्ड या फिर एक एट्रीब्यूट कहेंगे, और रोज को हम लोग रिकॉर्ड कहेंगे। सो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, आवर रिकॉर्ड्स। सो आई विल सिंपली राइट लाइक दिस हियर, records are here. So instead of writing here, I will write it here. This one is record, this one is complete record, and this one is complete record. This is also one record, and these are all what, fields or attributes. I will write it as here, fields or attributes. This is what, field or attribute. This is what, field or attribute. Okay, in this way we can derive fields and attributes as well as the records। देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज माय रिकॉर्ड। So in this way we can derive between records as well as fields, or which we can call it as the attributes। देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या देखा था, records are the rows representing one complete unit of information। Okay, these are all terms related to our particular table। I hope you understood this point। Just once again I will repeat। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रोल नंबर, नेम एंड ईमेल आईडी। ये जो है वो I should write here name like that, student information, इसे मैं इसको नेम दे दूंगी। Okay, I will ठीक है। अभी ये जो है मेरी टोटल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है। सो आई कैन से दैट आई एम गोइंग टू गिव माय टेबल नेम एज द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में मेरे फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर टोटली 3 फील्ड्स मैंने इंसर्ट की हुई है। कौन सी फील्ड्स है वो, रोल नंबर, नेम एंड ईमेल आईडी। सो फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स आर नथिंग बट द कॉलम which are going to represent a group or unit or group of the small data।
अभी नेक्स्ट देखिए, सीमा, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेलेक्टिंग ओनली सीमा, इट इज व्हाट, द स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट इन योर टेबल. ठीक है. Then next one is the record. A record is going to represent a whole unit which is having some meaning and which is complete. So अभी यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ये रो सेलेक्ट करूंगी, एक यूनिट के टोटल इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिल रही है. जैसे कि रोल नंबर 1 है, उसका नाम सीमा है, और उसका ईमेल आईडी seema@gmail.com है. सो ऐसे हमको क्या मिल रहा है, रिकॉर्ड मिल रहा है. एंड दिस टोटल, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स and record are nothing but your table. So अभी मेरे टेबल में कितने डेटा एलिमेंट्स है, टोटली 1 2 3 4. दैट इज आई कैन कंक्लूड दैट इन माय टेबल देयर आर 4 रिकॉर्ड्स अवेलेबल राइट नाउ. अभी मेरे टेबल में 4 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, दैट इज हाउ टेबल्स आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड एंड हाउ डेटा इज गोइंग टू बी shown in your tables. Okay. So the next point which we are going to discuss is types of key in a table. So children, let me tell you about, आपको अगर कोई डेटाबेस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो यहाँ पर की जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इफ यू आर गोइंग टू स्टडी द DBMS, विदाउट दिस की you will not able to understand what is mean by the DBMS, what is mean by the relational databases and how to perform operations on relational databases also. So हम लोग वन बाय वन टाइप्स ऑफ कीज इन अ टेबल देखेंगे. सो फर्स्ट वन इज व्हाट, प्राइमरी की. देखिए प्राइमरी की जो क्या होती है, वो क्या होता है, इट इज यूनिक की इन योर टेबल whose duplications are not allowed. I repeat, primary key is a unique key in your table whose duplications are not allowed. अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग देखते हैं, अभी हम स्विचिंग ही करेंगे सो दैट यू विल हैव द बेटर आइडिया अबाउट इट. देखिए सपोज आई विल इंसर्ट वन मोर रिकॉर्ड हियर, रोल नंबर 5, एंड रोल नंबर 5 का भी नेम जॉन है. इसका ईमेल आईडी सपोज john1@gmail.com, ऐसा समथिंग लाइक दैट ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर लिखा. देखिए जॉन नाम के 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं. यस, जॉन एंड समथिंग जॉन. ठीक है, उनके सरनेम सपोज कंसिडर करेंगे हम, डिफरेंट है फॉर्मेट. एक ही नाम के 2 पर्सन्स क्लास में हो सकते हैं, 3 पर्सन्स हो सकते हैं, मोर देन 3 पर्सन्स में भी देयर. ठीक है. सो जॉन नाम के यहाँ पर कितने पर्सन्स है, कितने स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट्स. अभी देखिए, बट क्या हम लोग एक ही रोल नंबर दोनों जॉन को दे सकते हैं क्या? रोल नंबर 3 कैन बी गिवन टू जॉन which is at the roll number 5. It is not possible. That's why we can conclude that we can have roll number as primary key. That is what, unique. मतलब उसका डुप्लीकेशन जो है वो अलाउड नहीं होगा. That's why roll number is generally considered as the primary key, या फिर the ID in your company is also considered as the primary key. जनरली प्राइमरी की जो होती है वो क्या होती है, इन नंबर फॉर्मेट होती है, नॉट इन टेक्स्ट फॉर्मेट. यस, टेक्स्ट फॉर्मेट में अलाउड है बट इट इज नॉट सुटेबल टू परफॉर्म द ऑपरेशंस. क्योंकि क्या होता है, जनरली एक नाम के 2 इंसान होते ही है. दैट्स व्हाई दिस मे क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट whenever you are going to perform some database operations. That's why we can conclude that here the unique key which is available in your records are what, the primary key. So the next type of key is composite primary key. देखिए अभी composite primary key मतलब क्या होती है, there are some situations where one unique key can't represent the information related to the particular record. That's why at that time we are going to use combinations of the 2 keys. That is nothing but composite primary key in your table relations. ठीक है, अभी पहले वो एग्जांपल से देख लेते हैं व्हाट इज कंपोजिट प्राइमरी की, सो दैट यू विल बी हैविंग द बेटर आइडिया अबाउट इट. अभी यहाँ पर देखिए रोल नंबर है. अभी मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, उप्स सॉरी मैं डिलीट कर दिया. ठीक है, आई विल इंसर्ट इट हियर. अभी यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ,
यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, हर एक स्टूडेंट को प्रोजेक्ट असाइन करें। अगर कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे उसको मोर देन 2 प्रोजेक्ट्स जो है वो हम असाइन कर देंगे। सपोर्ट प्रोजेक्ट का हम लोगों ने नंबर लिया, दैट इज प्रोजेक्ट नंबर, एंड आई विल हैव इंसर्ट प्रोजेक्ट नेम। काम कर देते हैं, इसको ना थोड़ा सा फोन दूसरा दे देते हैं। And project name, and here student's name, student whatever, and student name। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर देते वक्त हम लोग क्या कर देते हैं, अभी सीमा को मैंने क्या कर दिया, इको फ्रेंडली व्हीकल, ये प्रोजेक्ट ऐड कर दिया, और उसका सपोज प्रोजेक्ट नंबर है 5। ठीक है, विराम को मैंने क्या कर दिया, एक रिसाइकलर का एक कुछ तो हमने प्रोजेक्ट दे दिया, उसका प्रोजेक्ट नंबर हो गया सपोज। देन जॉन को जो है मैंने क्या कर दिया, कुछ अलग प्रोजेक्ट नंबर और एक दे दिया, इको फ्रेंडली, सपोज अभी इको फ्रेंडली नहीं, अभी हम गार्डनिंग, इसे कुछ तो प्रोजेक्ट दे दिया, उसका सपोज प्रोजेक्ट नंबर होगा 4। अभी उसी को दैट इज फॉर द जॉन इटसेल्फ हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको एक और प्रोजेक्ट दे दिया है हमने, अभी इसका क्या है रोल नंबर, जॉन का क्या है रोल नंबर 3 है, राइट। सो इसको हमने क्या कौन सा प्रोजेक्ट दे दिया, सपोज नेचर फोटोशूट, ऐसे कुछ तो हम लोगों ने दे दिया। अभी गीता को हमने प्रोजेक्ट दे दिया कोलाज, और नेक्स्ट रोल नंबर 5 जॉन को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक और कुछ तो प्रोजेक्ट दे दिया, जैसे कि यूसेज ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। अभी यहाँ पर देखिए, अगर हम लोगों ने क्या कहा था, प्राइमरी की जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, बट इन दिस केस यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉन जो है उसकी प्राइमरी की यहाँ पर रिपीट हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोजेक्ट जॉन को हम लोगों ने क्या किया है, 2 प्रोजेक्ट्स दे दिए हैं। सो when at that time it is not possible to have only 1 copy of primary key, then at that time what we are going to use, the composite key, which is combination of the 2 keys. That's why in some cases we have to use the composite primary key also. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय द प्राइमरी की एंड कंपोजिट प्राइमरी की। अब यहाँ पर कंपोजिट प्राइमरी की बनानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रोल नंबर एंड प्रोजेक्ट नंबर ये दोनों को मिलाकर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंपोजिट प्राइमरी की जो है वो वैल्यू जो है हमको उस टेबल में असाइन करनी पड़ेगी। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द अल्टरनेट की। So alternate key मतलब what? The alternate key is the key that have unique values for each record but is not selected for primary key. That's why we are going to call it as the alternate key. इसका मतलब क्या होगा, alternate key ही primary key की तरह यूनिक होती है, but here it is not going to be assigned as primary key। देखिए हर टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की भी 2 कॉलम्स का यूज कर और 2 फील्ड्स का यूज कर हम बना सकते हैं। That's why there are some cases or there are some chances that there will be 1 column such like that there will be no any repetition of the data, and that can be used as the alternate key. That's why we are going to call it as the alternate key to the primary key. So here we can consider, देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर जो है वो क्या है, हम लोग कंसिडर करते हैं
एक अल्टरनेट की तरह इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिपीटेशन नहीं हुआ है। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा होता, गीता और जॉन को हम लोगों ने क्या कर दिया होता, सपोज सेम प्रोजेक्ट दिया होता सोलर एनर्जी का, तो यहाँ पर क्या होता है, वो अल्टरनेट की यूज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर दो क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। So that's why we cannot call it as the alternate key. But yes, in this case we can call it as the project number is what? Our alternate key. So this is about the alternate key. I hope you understood about the primary key, composite primary key, and next one is the alternate key. So यहाँ पर next one is what? The candidate keys. What are the candidate keys? Firstly, देखिए, प्राइमरी की प्लस कैंडिडेट कीज मतलब क्या होता है, प्राइमरी की कैंडिडेट कीज कौन सी हो सकती है हमारी, प्राइमरी की प्लस अल्टरनेट कीज, ये दोनों को कॉम्बिनेशन कर हम लोग क्या बना सकते हैं, कैंडिडेट की जो है वो बना सकते हैं। देखिए अभी फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया, कैंडिडेट की जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की और अल्टरनेट की का दोनों का मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, दैट विल बी नथिंग बट योर कैंडिडेट की हियर। In short, what we can say, the keys which are eligible for the primary keys, whatever the keys available in your tables, which are ready to become a primary key are nothing but what, candidate keys. अभी देखिए यहाँ पर हम लोग कैंडिडेट कीज कौन कौन से कह सकते हैं इन करंट सिचुएशन, रोल नंबर, देखिए यहाँ पर रोल नंबर विल बी और कैंडिडेट की, ऑब्वियसली वो तो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की हम लोगों ने असाइन की हुई है। देन प्रोजेक्ट नंबर विल बी आल्सो द कैंडिडेट की, एंड प्रोजेक्ट नेम भी जो है वो क्या हो सकता है, कैंडिडेट की हो सकता है, क्योंकि वहां पर कोई रिपीटेशन नहीं है, ऑल द यूनिक्स वैल्यूज आर देयर, दैट्स व्हाई वी कैन से which are candidate keys in our table, roll number, project number, and project name. So in this way we can use the candidate keys. So here primary keys are primary keys plus combination of all the alternate keys plus all the remaining candidate keys are the combination of the candidate keys here. एक बार फिर से मैं बताती हूँ, कैंडिडेट कीज जो होती है वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ दी ऑल प्राइमरी कीज एंड अल्टरनेट कीज होती है। देन नेक्स्ट वन इज दी फॉरेन की। अभी देखिए, फॉरेन की इज अ की विच इज नॉट प्राइमरी इन दैट टेबल बट इज अ प्राइमरी की इन अदर टेबल, दैट इज नथिंग बट व्हाट, फॉरेन की। फॉरेन की एक ऐसी की होती है, वो क्या होती है, करंट टेबल में जो है वो प्राइमरी नहीं होती है, बट किसी और टेबल में वो प्राइमरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक और टेबल इंसर्ट करके बताऊंगी, सो दैट यू विल हैव द आइडिया अबाउट व्हाट इज मीन बाय द फॉरेन की। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट नंबर नेम है, अभी यहाँ पर मैं एक और रो इंसर्ट, एक और कॉलम इंसर्ट कर देती हूँ। यहाँ पर अभी मैं देती हूँ टीचर आईडी। ठीक है, अभी कौन से टीचर एज अ गाइड उनको असाइन की हो गई, टीचर से बेटर है आई विल बी असाइनिंग इट एज ए गाइड आईडी। ओके, अभी यहाँ पर क्या होगा, ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, वैसे ही मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट टीचर्स इन्फॉर्मेशन बोलकर एक टेबल और एक बना दूंगी, इसके सामने ही बना देती हूँ। अभी ये जो रहेगा मेरा रहेगा टीचर इन्फॉर्मेशन और गाइड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ओके। अभी गाइड आईडी यहाँ पर रहेंगे G1, G2, ठीक है, ऐसे कुछ तो गाइड आईडी रहेंगे, एंड उन गाइड्स के जो होंगे
वो सिंपली नेम यहाँ पर हम लोग रखते हैं। बाकी जो कॉलम्स हैं हमको अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए ईमेल आईडी भी हम नहीं रखेंगे उसका। गाइड नेम, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग गाइड के नाम से देते हैं ABC P4 XYZ को ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, ये गाइड आईडी है और ये गाइड आईडी हमारा क्या है, प्राइमरी की है, राइट। मेरे कौन से टेबल में, गाइड इंफॉर्मेशन टेबल, ये मेरा प्राइमरी की हुआ। ओके, देखिए अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, गाइड सबको अलोकेट करके देते हैं G2 ठीक है। अभी मैं G1 G3 G5 G4 ठीक है। और भी गाइड जो है हम लोग असाइन कर सकते हैं G6 एंड सो ऑन। अभी देखिए यहाँ पर गाइड आईडी जो है वो यूनिक है और यहाँ पर गाइड इंफॉर्मेशन टेबल में वो क्या हुआ, प्राइमरी की, दैट इज यूनिक की हुआ। बट दैट गाइड आईडी इज यूज्ड इन द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन व्हिच इज नॉट प्राइमरी की। So that's why you can see here is the guide ID is foreign key in student information table. I repeat, guide ID is foreign key in student information table because it is primary key in the guide information table. देखिए ये सारे जो हमारे टेबल से रिलेटेड टर्म्स हैं, डिलीट कर देती हूँ so that you will not have any conflict when you are going to understand. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय द फॉरेन की हियर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द कीज व्हिच आर गोइंग यू आर गोइंग टू बी यूज एज पर योर नीड। आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपके डेटाबेस के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं एंड डेटाबेस जो है वो बना सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर डेटाबेस क्या रहेगा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और गाइड इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर सेव कर देंगे, दैट विल बी व्हाट, योर डेटाबेस, and it is going to be stored wherever you want. So this is all about the types of a key in a table, that is primary key which is unique, composite primary key which is combination of two keys, then the alternate key which can be used as the primary key but it is not primary key as it is having unique values for each record. Then candidate key is going to become a combination of both the primary key and alternate key and all the candidate keys available in the your table. The next one is the foreign key, a key which is not a primary in that table but it is primary in the other table. This is nothing but what, foreign key. Okay, this is all about the tables and its different fields, attributes, records and data unit. Then the next part which is we are going to see is queries. So what is mean by the queries here? A statement that gives you filtered data according to your conditions and specifications is nothing but a query. So यहाँ पर देखिए query क्या होती है, it is going to give you some data according to your conditions and specification, आपकी जरूरत के हिसाब से और आपके specification के हिसाब से query जो है वो क्या होती है, आपको data retrieve करके देती है। जैसे कि हम लोग अभी कह सकते हैं, if you know about the SQL, so SQL is nothing but all structured query language. We are going to study about it afterward. So that is totally purely based on the queries. जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल इन टुडेज एग्जाम्पल देखिए, अभी मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू रिट्राइव द डेटा ऑफ ऑल द जॉन्स विच आर इन द टेबल। ठीक है, जितने भी जॉन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है मुझे क्या करनी है, ये टेबल से रिट्राइव करके लेनी है, मुझे फाइंड आउट करना है। सो अभी हम लोगों ने क्या देखा, देखिए 5 स्टूडेंट्स के लिए हमने डेटा देखा, उसमें भी वो इतने कॉम्प्लिकेशन हो गए। सो इन अ क्लास देयर आर सो मेनी स्टूडेंट, 20, 30, 60 एंड सो ऑन। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा, बहुत ही रिकॉर्ड्स जो है हमको ट्रैवर्स करने पड़ेंगे। सो इंस्टेड ऑफ ट्रैवर्सिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू,
we are going to use queries at that time. I hope you understood what is meant by a query. Whenever you are going to write some queries in our actual databases, you will have the better idea about it. That is how to write the queries. It is very interesting part and very easy if you have understood what is meant by the tables and what is meant by the databases. फील्ड क्या होता है, एक रिकॉर्ड क्या होता है, देन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देन डेटा यूनिट क्या होता है, एलिमेंट्स डेटा एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आई होंगी तभी आप लोग क्वेरीज अच्छे से लिख सकते हैं. टू नॉट जस्ट ट्राई टू रिवाइज ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू द टेबल्स. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द फॉर्म्स. यस, आपके मन में जो फॉर्म्स के बारे में आ रहा है, जैसे कि आप लोग एग्जाम फॉर्म भरते हो, किसी कॉलेज का स्कूल का एडमिशन फॉर्म भरते हो, ये सारे फॉर्म्स क्या होते हैं? These are what? An interface in user specified layout that lets user view, enter, change data directly in the table. ठीक है, आप लोग कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, वो डेटा जो है आपका क्या होता है, एक टेबल में कन्वर्ट होकर एक डेटाबेस में स्टोर होता है. जितने भी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म्स भरते हो, even if you are going to make the Gmail account, Facebook account, Twitter account, Instagram account, all are these nothing but whenever we are going to create a अकाउंट, whenever you are going to create an account, वहां पर क्या होता है, एक फॉर्म होता है, वही हम लोग फिल करते हैं. जैसे कि योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर इंटरेस्ट, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, ये सब क्या होता है डेटा हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म में भरते हैं एंड दैट फॉर्म इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इनटू द टेबल हियर. So that's why we can say that as the forms are are interfaces in a user defined or user specified layout that lets users view, enter and change data directly into the table. So इससे क्या होता है, अपना डेटा जो होता है we can see it easily. ठीक है, अभी आप लोग अभी डायरेक्टली अगर जाके देखोगे कि आप एक्चुअली फॉर्म्स कैसे स्टोर होते हैं ऑनलाइन, इट इज वेरी हेक्टिक टू सी दैट. That is, data is going to be stored into some centralized database, then it is distributed into the different networks and different servers, and their actual data is going to be stored. So to make user friendly forms, we are going to use the form designs. Okay, we will see after what is meant by the forms and how the form designs are going to be used into the database. So the next one is the reports. Okay, हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेशन देखे हुए हैं, हाउ इन बेसिक राइटिंग स्किल हाउ टू राइट द रिपोर्ट्स देयर. So reports are what in an effective way to represent data in a printed format. So it is a formal, presentable printed document that lists data in a formatted manner. अभी हम लोगों ने एक जो डेटा यहाँ पर एंटर किया हुआ है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टेबल है, इसमें कुछ सब डेटा ऐड किया गया है. बट अगर जनरल यूजर को हम लोग अभी ये डेटा जो है वो यूज करने के लिए देंगे, या फिर एक जनरल यूजर है उसको हम लोग जो डेटा है वो उसको समझ के लेने के लिए वो नहीं समझेगा. तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव सम रिपोर्ट्स एंड यस ऑब्वियसली दिस रिपोर्ट्स आर गोइंग टू बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली और वी कैन जनरेट द रिपोर्ट्स मैन्युअली आल्सो. सो वो रिपोर्ट्स हमको कैसे राइट करने हैं, उसका डेटा एक्चुअली कैसे अपडेट करना है, ये हम आने वाले सेशंस में जरूर देखेंगे. So the next and most important thing is how to design a database. That is designing a database step by steps. So there are some rules or there are some steps which we can follow to design a database. Okay, so we will see them one by one. First of all, before actually designing the database, you must understand or you must determine the purpose of your database. आप डेटाबेस किस लिए डिजाइन कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डेटाबेस. सपोज आई एम गोइंग टू राइट डेटा फॉर स्टूडेंट डिटेल्स, टीचर्स डिटेल्स, और सपोज आई एम गोइंग टू राइट डेटाबेस फॉर एम्प्लॉय डिटेल्स, और आई एम गोइंग टू राइट डेटाबेस फॉर पर्टिकुलर मॉल. मॉल में कितने सारे स्टोर्स है, कौन से स्टोर में कितना सारा मटेरियल अवेलेबल है, कौन सा स्टॉक है, कौन से प्रोडक्ट्स है. ठीक है, दैट इज नथिंग बट डिटरमाइन द पर्पस ऑफ योर डेटाबेस. देन नेक्स्ट वन इज डिटरमाइन द टेबल्स यू नीड. ठीक है, स्टूडेंट के लिए हम लोग को सपोज कंसिडर करिए डेटाबेस बना रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से टेबल्स लगेंगे. एक तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लगेगी, उसके बाद उसके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन लगेगी, देन उसके बाद टीचर्स रिलेटेड टू दैट स्टूडेंट, उस स्टूडेंट को कौन कौन से टीचर्स जो है वो पढ़ाते हैं. ये सारे जो टेबल्स हैं वो हमको डिफाइन करने पड़ेंगे. देखिए, हम लोग डायरेक्टली जो है टेबल डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज द डेटाबेस यू आर गोइंग टू यूज. So these steps must be followed in ascending order. And in
serial manner. Then next one is the determine the fields you need. ठीक है, अभी मैंने टेबल आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे स्टूडेंट डेटाबेस का जो है वो टेबल बनाना है। तो फर्स्टली मैं क्या कर रही हूँ, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन बना रही हूँ। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में मुझे कौन कौन सी फील्ड्स रखेंगी, फर्स्ट वन इज द रोल नंबर, देन नेम ऑफ द स्टूडेंट, देन स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, उसका एड्रेस एंड सो ऑन थिंग्स रिलेटेड टू दैट स्टूडेंट। दैट इज नथिंग बट डिटरमाइन द फील्ड्स यू नीड टू डिजाइन अ स्टूडेंट डेटाबेस। अभी देखिए उसके बाद हमको क्या करना है, उसमें से प्राइमरी की जो है वो चूज करनी है। दैट इज आइडेंटिफाई द फील्ड्स और फील्ड विथ यूनिक वैल्यूज इन ईच रिकॉर्ड। यहाँ पर फील्ड और फील्ड्स क्यों यूज किए हुए हैं, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके प्राइमरी की के लिए हम लोग अल्टरनेट की या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट की जो है या फिर कंपोजिट की जो है वो यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आइडेंटिफाई द फील्ड और फील्ड्स विथ यूनिक वैल्यूज इन ईच रिकॉर्ड। देन नेक्स्ट वन इज डिटरमाइन द रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल। अभी रिलेशनशिप देखिए यहाँ पर क्या कौन सी है, यहाँ पर गाइड आईडी एंड गाइड आईडी यहाँ पर भी है। सो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और गाइड इन्फॉर्मेशन में रिलेशनशिप है। सो यार वी हैव टू आइडेंटिफाई और डिटरमाइन द रिलेशनशिप्स बिटवीन द different tables in the same database or in the different databases. Then next one is refine your design. That is try to understand the whole database which you have designed and then just you try to refine your design. मतलब क्या आपके डिजाइन में कुछ अगर मिस्टेक्स हो, कुछ गलतियां हो, कुछ फ्लॉज हो, कुछ फॉल्ट्स हो, just try to rectify this and try to remove this. Then last one is enter data and create other database object. ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन एंटर डेटा एंड क्रिएट अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट। लास्टली हमको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद डेटा एंटर करना है एंड वी हैव टू क्रिएट दी अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आल्सो। So in this way we can design a database. So friends, we are going to see that is how to design a database, how to write data into the table, or how to modify, how to delete the data from the table in the upcoming lecture. So the book which I report for today's lecture is Information Technology by Sumita Arora. So that's all for today's lecture. So we will see the actual practical sessions related to databases in the next lecture. Till then, bye. So the next feature for the plus and iconic subscribers. Yes, we are having the exclusive feature for plus and iconic subscriber, that is raise a hand. So you can now speak to your favorite educator in live class. Yes, obviously you can ask your doubts also. So now you can clear your doubts instantly with an option to have one-to-one discussion with your favorite educator in a live class. So you can participate in quizzes, vivas and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, obviously. And you can have the personalized and highly interactive live class experiences. So you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off. So Unacademy, let's crack it. So friends, Unacademy is freedom to learn offer. So this Independence Day, get the freedom to learn. Yes, this is new offer only for CBSE class 9th. So student, this is the exclusive offer for CBSE class 9. That is, we are pleased to inform you that is our new exclusive offer for our CBSE class 9 learners. That is, if you take up a CBSE class 9 subscription for 2 years, then you will get the subscription of IIT, JEE, NEET Foundation and NTSC absolutely free. So what is this IIT, JEE, NEET Foundation and NTSC category all about? I will tell you about that. You can build the foundation for the IIT, JEE right from class 9th. So it is having the structured courses that will help you to crack the multiple Olympiads like NTSC, IMO and so on. Yes, obviously, and you can win the great national level scholarships. So you can save students 40% on your subscription price. So this is only for the first 500 CBSE learners and the offer can be availed using the educator referral code. So you can use my educator referral code, that is TD Live. So just this is the limited time offer and it is valid from the 11th of August 2021 to the 31st of August 2021. So students gets your subscription now. This is at limited period offer.
देखिए दोस्तों, अनअकैडमी हर बार कुछ नया लाने की कोशिश करती है। सो इस बार जी हाँ, आप लोगों को जैसे कि पता होगा, you are having the last chance to win free Creative Corner subscription. So this offer is going to end on 23rd of the August 2020. म्हणजे हाँ, हमारी क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन की जो चांस है इट इज गोइंग टू एंड। सो देखिए ऑफर्स कैसे हैं, देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन, लाइक अगर आपका सब्सक्रिप्शन 12, 15 एंड 18 मंथ्स का है क्रिएटिव कॉर्नर का, then you will get that is a free Creative Corner subscription for 2 months, so whether it is plus or iconic based on your subscription. Then अगर आपका सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन है 24, 36 एंड 48 मंथ्स का, so you will get the free Creative Corner subscription for 4 months। जी हाँ, 4 महीनों के लिए आपको फ्री क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलेगा। सो ये अगर आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्लस का मिलेगा, अगर आपका आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है तो आपका क्रिएटिव कॉर्नर का आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज दी, अगर आपका सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन है फॉर 60, 72 एंड 84 मंथ्स का, इधर फॉर द प्लस और इधर फॉर द आइकॉनिक, सो आपको क्या रहेगा, फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन मिलेगा पूरे 6 महीने के लिए, दैट इज टोटली फ्री। प्लस का है तो प्लस का मिलेगा, एंड आइकॉनिक का है तो आपको आइकॉनिक का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है टोटली फ्री मिलेगा। सो हरी अप, इट इज लिमिटेड पीरियड टाइम ऑफर एंड यू कैन यूज माय कोड दैट इज गिवन हियर, दैट इज TD Live, to get the free subscription also for the Creative Corner. So this is your last chance to win free Creative Corner subscription, and the offer is going to end on 23rd of the August 2021. So choice is yours. So with Unacademy subscription, you will get with one subscription comes the great benefits like you will get the unlimited access to 7 subjects, 7 सब्जेक्ट्स को आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, एंड यू विल गेट द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स टू चूज फ्रॉम। ऑब्वियसली आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, यू विल गेट द फुल सिलेबस फॉर NCERT and as well as dedicated plus courses. And yes, obviously without Unacademy subscription you will be having a lot of confusion. So jaldi kijiye students, choice is after all yours. So subscribe now before it is too late. So the next exams are I think just 2 months, right? So you can get the 10% discount on using the educator referral code. So please use my educator referral code, that is TD Live, so to get the 10% discount. So jaldi kijiye, hurry up, the time is getting over. So friends, we are having the mega launch every Mondays, as you know. So here we are having the Laksh Foundation batch for IIT and JEE aspirants. So ये बैच किसी लिए, देखिए फॉर CBSE क्लास 9 के लिए भी है एंड CBSE क्लास 10 के लिए। एंड यस, पहले हम लोग देखते हैं CBSE क्लास 9 के लिए। इट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 31st of the August 2021। 31st अगस्त को ये बैच स्टार्ट होगी, and we are having the subjects like maths and science with the expert teachers. Yes, obviously you are having the new batches for doubt clearing and NCERT exercises also. And also अगर आप लोग IIT JEE के aspirants हो for CBSE class 10th, so यहाँ पर भी आपकी जो लक्ष्य फाउंडेशन बैच है वो 31st August 2021 को स्टार्ट हो रही है। सो वी आर हैविंग द स्पेशल स्ट्रेचेस फॉर द मैथ्स एज वेल एज द साइंस। तो देखिए मैथ्स की जो डेट है वो 1 सितंबर को स्टार्ट होती है, एंड साइंस इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 31st of August 2021। सो वैसे ही CBSE क्लास 10 के लिए IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए एक और CBSE क्लास 10 की बैच रहेगी, दैट इज लक्स फाउंडेशन बैच। It is for maths, it is going to start on 17th of September 2021, and for science it is going to start on 31st of August 2021. So yes, obviously you are having the new batches for doubt clearing sessions and NCERT exercises. So students जो obviously class 9th and 10th के IIT and JEE के लिए interested हैं, they are having the golden chance for it. And yes, you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off discount. So that is बात किया students, join our new Laksh Foundation batches. So friends, let me tell you about the basic about the plus subscription.
एंड ऑल्सो द एडवांस प्लान ऑफ द बेसिक, दैट इज आइकॉनिक जो है ये प्लस का जो है एडवांस्ड वर्जन रहेगा. देखिए प्लस में जो यू आर गोइंग टू हैव द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड. And yes, obviously at Iconic, you can take your CBC preparation to the next level with personal mentor. देखिए प्लस के फीचर्स क्या क्या है. यू आर हैविंग द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स एज वेल एज द इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस, देन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड PDFs also. एंड इन आइकॉनिक में क्या रहेगा, प्लस के जो फीचर्स है वो सारे के सारे रहेंगे और उसके साथ आइकॉनिक में आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे. देखिए यहाँ पर भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स रहेंगे, देन इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस, देन यू आर हैविंग द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड PDFs आल्सो. सो यहाँ पर एडिशनल क्या है आइकॉनिक में, देखिए द पर्सनल मेंटर इज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स. यू आर हैविंग द लाइव डाउट सॉल्यूशंस, लाइव इंटरेक्शन विथ योर मेंटर्स आल्सो, एंड यस ऑब्वियसली पेरेंट कनेक्ट भी यहाँ पर रहेगा, दैट इज टीचर पेरेंट कनेक्शन रहेगा यहाँ पर. एंड आपको आइकॉनिक का स्पेशल स्टडी प्लानर जो है वो भी मिलेगा. सो यू कैन यूज माई कोड दैट इज स्टडी लाइव फॉर फ्लैट 10% of discount for both, that is on the plus and iconic solution. So you can select the plus or iconic based on your choices. So उसके plans कैसे है देखिए. अगर आप लोग CBSE का क्लास 9, 10th, 11th, 12th का लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. अगर क्लास 10 का लोगे तो 10th, 11th, 12th आपको साथ में मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का. तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग प्लस का देख लेते हैं. इफ़ यू आर हैविंग द 3 month सब्सक्रिप्शन देन यू हैव टू पे 7,500 for the 3 months, that is 2,500 for per month. Now if you are having the 6 month subscription then you are have to pay 10,000 for the 6 months, that is flat 33% off. Then if you are having the 12 month subscription then you are going to pay 15,000, that is 1,250 per month. If you are going for the 15 month subscription then you will have to pay 18,000. If you are going for the 18 months then you will have to pay 20,000, that is 1,111 per month. Now if you are going for the 24 month subscription then you will have to pay 25,000 for the 24 months, that is 1,042 per month. If you are going for 36 months then you will have to pay 32,000 for whole 36 months and 889 per month. If you are going for the 48 month subscription उसमें आपको क्या लगेगा 40,000, 40,000 जो है पूरा का पूरा पैकेज रहेगा एंड 830 will be for per month. देखिए आज जितना आप लोग ज़्यादा पैकेज लोगे उतना ही आपका बेनिफिट और डिस्काउंट जो है वो बढ़ता जाएगा. सो बेसिक क्लास का 9, 10th, 11th, 12th का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देखिए the same case for 3 months, 6 months, 12, 15, 18, 24, 36 and 40 months. देखिए यहाँ पर 3 months का सब्सक्रिप्शन जो है वो 12,000 को रहेगा with 4,000 per month. Then next one is 6 months, 17,000 रहेगा with 2,833 per month. Then 12 months का रहेगा 28,000. Then 15 months का रहेगा 32,000. 18 months का रहेगा 35,000. 24 months का रहेगा 48,000. 36 months का रहेगा 66,000 and 48 months का रहेगा 83,000, that is 1,729 per month. सो वैसे अभी आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास 10th, 11th और 12th का सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए देख लीजिए. 3 months का सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहेगा 7,500 रुपीज़ के लिए. 6 month का रहेगा 3,000 के लिए. 12 months का रहेगा 15,000 के लिए. 15 months का जो है आपके लिए रहेगा 18,000 के लिए. देन 18 months का आपके लिए रहेगा 20,000 के लिए एंड 24 months का रहेगा 25,000 के लिए. एंड लास्टली 36 month का जो है वो 32,000 के लिए रहेगा. And the same case for the iconic, that is for class 10th, 11th and 12th subscription, that is 3 months का रहेगा आपके लिए 12,000. Then 6 months का 17,000, 12 months का 28,000, 15 months का 32,000, that is 2,133 per month. 18 months का रहेगा 35,000 के लिए एंड 24 months का रहेगा 48,000 के लिए. ऑब्वियसली वैसे ही क्या रहेगा 36 month का जो सब्सक्रिप्शन है लास्टली वो रहेगा 66,000 के, that is 1,833 per month with 54% discount. And yes, obviously you can use my code, that is TD Live for flat 10%
ऑफ डिस्काउंट. सो स्टूडेंट जल्द से जल्द आपका जो सब्सक्रिप्शन दैट इज बेस्ड ऑन योर चैट दैट इज प्लस और आइकॉनिक प्लीज सब्सक्राइब करके लीजिए. सो फ्रेंड्स हर बार की तरह इस बार भी अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट ला रही है. जी हाँ, वी आर इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप ट्रस्ट वंस अगेन अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट. सो इस बार यू कैन विन द स्कॉलरशिप वर्थ रुपीज 2 crore. So link is given in the description box. Yes, obviously this Unacademy Mega Compact is on every Sunday and you can use my code that is TDLive for the educator referral code also. So देखिए Unacademy Mega Compact बहुत से आप स्टूडेंट्स ने दिए होंगे, कुछ ने नहीं दिए होंगे. So let me tell you about that. So Unacademy Mega Compact Scholarship Tips, that it is formula for your success in CBSE classes 9 and 10. You can win one scholarship worth rupees 2 crore. देखिए लास्ट टाइम हम लोग जो ले लिए थे बैचेस उसके 1 करोड़ के थे. सो नाउ वी आर हैविंग द 2 करोड़ स्कॉलरशिप ऑफर्स. सो आपकी पढ़ाई के साथ साथ यू कैन विन द प्राइजेस आल्सो. एंड दिस मेगा कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट आर फॉर सीबीएसई क्लासेस 9th एंड क्लास 10. सो डेट लिख लीजिए. द अपकमिंग मेगा कॉम्बैट इज ऑन August 29th 2021 at 11 AM. सो एनरोल ऑनलाइन लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं हम लोग पहले से ही. सो उसका फॉर्मेट देखिए कैसा रहेगा. यू विल बी हैविंग 30 क्वेश्चंस एंड 45 मिनट्स फॉर दैट. 30 क्वेश्चंस है एंड यू आर हैविंग द 45 मिनट्स टू सॉल्व दिस. द टेस्ट विल बी ऑब्वियसली अवेलेबल इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज. बोथ लैंग्वेजेस में आपको टेस्ट अवेलेबल रहेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. एंड टेस्ट विल बी लाइव. इट विल बी द फ्री लाइव टेस्ट ऑन योर एंड्रॉइड एप्लीकेशन. सो जल्दी कीजिए एंड एनरोल नाउ फॉर अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट. डेट लिख लीजिए August 29 at 11 AM. So you can have the flat 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription. You can use my code that is TDLive for both Plus and Iconic subscription with flat 10% off. And you can download the Unacademy app now. Get it on the Google Play Store and you can download it on the Apple Play Store also. Try its all of the features for free using my code that is TDLive. So students, that's all for today. We'll meet in the next session. Unacademy, let's crack it.